मुझे ऐसा फील आ रहा है सर से बात करने के बाद, जैसे तारे ज़मीन पर का जो आमिर खान का रोल है, आप बहुत बखूबी रियल लाइफ, वो तो रियल लाइफ में था बट आप रियल लाइफ में बखूबी निभा रहे हैं। स्टाफ की अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को होता है कि कुछ पेरेंट्स का मानना है कि लोकल स्टाफ होगा तो लैंग्वेज, उनका एक्सेंट ठीक नहीं होगा, राइट? ये कुछ बेसिक इश्यूज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे बच्चे क्लास 1 से जैसे यहाँ से स्टार्ट है तो बच्चों का वो बेस होता है। थोड़ा सा स्टाफ के बारे में डिटेल में बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि Alpenstock has particular norms in recruiting the staff. Wonderful. तो मेरे मानने में ये नहीं है कि कोई भी अगर लोकल स्टाफ मेंबर है, वो भी ये नहीं है कि वो लोकल है तो उसको शायद से उसका लेवल वो नहीं है, बट हमारे एक सर्टेन नॉर्म्स हैं रिक्रूटमेंट के। Our staff, we don't have any local staff, first of all this thing. And all the staff members are from South India. Alpenstock World School, he did his MBBS from अमृतसर, और उसके साथ साथ ये खुद रेजिडेंशियल स्कूल में रहे हैं। और जिस इंसान के पास जो एक्सपीरियंस होता है, जब वो अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करता है तो वो अपने आप अल्टीमेट होता है। मैम, बेसिकली Alpenstock World School is a totally a different concept. Like we have many residential schools, but it is a totally a different concept which we have introduced. जहाँ तक मैंने नोटिस करा, because I have also been into residential schools and I have visited many residential schools and I met a lot of parents. Wonderful. And on the basis of reviews, we have made a process कि हमने कैसे अपनी admissions को करना है जिससे हमारी quality पे भी enhance हो. Like previously we started and it is like we have made this process that every year we're going to launch only 80 registration forms. Oh, that's great. Yeah. And we are only going to choose 50 students who are going to get enrolled in the Alpenstock World School. Wonderful. Now, reason behind that is that we want to focus on quality more. Every particular batch, because it is a very hard-earned money of all the parents. That's true. And in residential schools, there are a lot of fees and everything we are charging. But I want to do justice with each and every penny a parent is paying. जो एक वो अपना दे रहे हैं, अपने हार्ड अर्न मनी का एक एक पैसा जो दे रहे हैं उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। Wonderful. And it is only possible अगर if we have limited number of students. Like our ratio is we have 15:1 ratio. Okay. In every class, and we are going to make 2 sections for particular class. Ma'am, first of all, like if anyone is interested, they visit our campus because we want to show them that what we have, because we want to be transparent with all the parents, because it is their ward who is getting enrolled here, so they have full right to see each and everything in we have in Alpenstock World School. For me, what I believe is मेरे belief ऐसे हैं कि जो एक educational institute है उसका जो basically जो thumb है, जो उसकी foundation है, उसके assets हैं, that are the staff members. Okay. इसलिए हम अपनी जो रिक्रूटमेंट करते हैं, वी रिक्रूट ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, वी रिक्रूट फ्रॉम इंटरनेशनल स्टाफ मेंबर्स आल्सो, लाइक वी रिक्रूट, ताकि हम एक बच्चों को जो पढ़ाने वाले हैं वो खुद से इतने हमारे फिल्टर्ड होने चाहिए, इतना फिल्टर्ड स्टाफ हमें चाहिए कि हमारे बच्चे का एक लेवल हो जी। क्योंकि आई हैव सीन, कई बार मैंने देखा है कि जब हम कभी सोसाइटी में बैठे होते हैं जी, तो कोई भी बोलता है कि लेट्स प्ले बिलियर्ड्स, मैंने किसी बच्चे को बोला चलो बिलियर्ड्स खेलते हैं, मैक्सिमम आंसर्स व्हिच आई हैव रिसीव्ड वाज दैट What is billiards? What is billiards? He doesn't know. Right. Parent एक अपना, जैसे मैंने बताया कि एक हार्ड अर्न मनी बच्चे के ऊपर लगा रहा है जी। So we have with us Dr. Gursimranjeet Singh, Managing Director, Alpenstock World School. He did his MBBS from अमृतसर, और उसके साथ साथ ये खुद रेजिडेंशियल स्कूल में रहे हैं। और जिस इंसान के पास जो एक्सपीरियंस होता है, जब वो अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करता है तो वो अपने आप अल्टीमेट होता है। वेलकम सर। हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? गुड मैम। सर, पेरेंट्स आर वेरी क्यूरियस अबाउट एडमिशन क्राइटेरिया, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी तक वीडियो में सारी चीज़ें पेरेंट्स को ऑलमोस्ट समझ आ चुकी हैं, स्पेशियस है, कंफर्टेबल है। आई मीन मैं अगर गिनने पे आऊँ तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। सो मैं पेरेंट्स के बिहाफ पे जाना चाहती हूँ दैट व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन? Ma'am, basically Alpenstock World School is a totally a different concept. Like we have many residential schools, but it is a totally a different concept which we have introduced. जहाँ तक मैंने नोटिस करा, because I have also been into residential schools and I have visited many residential schools and I met a lot of parents. Wonderful. And on the basis of reviews, we have made a process कि हमने कैसे अपनी admissions को
करना है जिससे हमारी क्वालिटी पे भी इन्हेंस हो जी। हमने काफ़ी आपने देखा होगा कि काफ़ी स्कूल्स में एक लिमिट नहीं है क्लासरूम्स में देयर आर अ लॉट ऑफ किड्स इन वन क्लासरूम लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन वन क्लासरूम उससे क्या होता है कि जो क्वालिटी है वो हमारी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। That's true. Right. See, there are some schools I've seen that they have 35 kids in one section, not in a one classroom, but in one section. And for particular one class, for one grade, they have three sections, and minimum one section is catering 35 students. But you will be shocked to know that we every year, like previous year we started, and it is like we have made this process that every year we're going to launch only 80 registration forms. Oh, that's great. Yeah. And we are only going to choose 50 students who are going to get enrolled in the Alpenstock World School. Wonderful. Now, reason behind that is that we want to focus on quality more. That's good. Because I believe in that slow and steady wins the race. That's true. So what I want is that every particular batch, because it is a very hard-earned money of all the parents. That's true. And in residential schools there are a lot of fees and everything we are charging, but I want to do justice with each and every penny a parent is paying, जो एक वो अपना दे रहे हैं अपने हार्ड अर्न मनी का एक पैसा जो दे रहे हैं उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। Wonderful. And it is only possible अगर if we have limited number of students, like our ratio is we have 15:1 ratio Okay. in every class, and we are going to make 2 sections for particular class. Okay. But we want to proceed very slowly. We want to take only 50 students every year so that we can focus on each and every particular child personally. So that is why like we have only 50 students enrolled. We get 50 students enrolled every year. Okay, Yeah, wonderful. every year. So मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स को एक बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है जानने के लिए कि जैसे कि लाइक ही सेड कि एक क्लास में 35 और ये बहुत टाइम से चीज़ें चलती आ काफी रही time है, से, ma'am, राइट? बिल्कुल, तो ये काफी बहुत time से। अच्छी चीज़ है कि इनके पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं बिकॉज दे आर नॉट मनी माइंडेड एट ऑल, नॉट बिजनेस, आई डोंट No, थिंक सो, no, राइट? no, not सो at all. ये दे आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी एजुकेशन जो कि आपके बच्चे को देनी है। वन थिंग आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट एंट्रेंस टेस्ट बिकॉज Yes. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग Ma'am, first of all, like if anyone is interested, they visit our campus because we want to show them that Yeah. what we have. Because we want to be transparent with all the parents because it is their ward who is getting enrolled here. So they That's have true. full right to see each and everything. We have in Alpenstock World School, and वो विजिट करते हैं, दे गेट रजिस्टर्ड. आफ्टर द रजिस्ट्रेशन वी गिव देम सिलेबस, वी गिव देम पर्टिकुलर फॉर्म्स, वी गिव देम कि हमें हेल्थ में व्हाट वी वांट, ऑल द हेल्थ चेकअप फॉर्म्स, वी गो फॉर द फिजिकल टेस्ट आल्सो एंड एवरीथिंग. वी गिव देम द सिलेबस, देन वी गिव देम अ पर्टिकुलर डेट दैट आप इस तारीख को आइएगा, इस तारीख को आपका एंट्रेंस टेस्ट लेंगे. जी. हमारा एंट्रेंस टेस्ट इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन academic syllabus. It is like we want to understand the general knowledge of that student. Yes. And उसका क्या एक लेवल, उसका IQ लेवल क्या है, क्योंकि वी डोंट वांट कि एक हम ना बोल दें कि पत्थर पे लकीर वो हम वो काम नहीं करना चाहते हैं कि वी फॉलो दैट रिचुअल, राइट? तो हमें बच्चे का, क्योंकि मैं जहाँ तक बिलीव करता हूँ कि हर एक बच्चा इंटेलिजेंट है, इट इज़ जस्ट द गाइडेंस. एक गाइडेंस उसको अच्छी मिलनी चाहिए. वो हर एक बच्चा हर कुछ कर सकता है बिकॉज इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल, राइट? सो आई बिलीव, सो हम उसको एक सिलेबस देते हैं पर्टिकुलरली दैट दिस इज़ व्हाट आपको इतना जनरल नॉलेज का ये टॉपिक्स हैं, ये आपके जो बेसिकली जर्नल हमारी रहती हैं सब्जेक्ट वाइज, मैथमेटिक्स के कुछ जर्नल कॉन्सेप्ट्स, साइंस के कुछ जर्नल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है जी, इंग्लिश की कहाँ पे उसका है, उसको हमारा इंटरेस्ट ये नहीं कि हमें डिनाई करना है किसी स्टूडेंट को, हमें उसका लेवल देखना है बिकॉज वी आर द टीचर्स. हमारा टीचर्स का काम है कि हर एक बच्चे को ग्रूम करना, क्योंकि बच्चा एक कच्ची किताब है, एक खाली किताब है, राइट? उसको फेयर कैसे करना है वो हमारे टीचर्स की जिम्मेवारी. अगर हम उसको डिनाई करेंगे तो वो तो फर्स्ट स्टेप पे हमने उसको डिमोटिवेट कर दिया, राइट? वी वांट टू मोटिवेट स्टूडेंट्स दैट यस यू कैन डू इट, बट वी वांट टू गिव देम प्रॉपर गाइडेंस. सो टू नो देयर लेवल दैट वो बच्चा कहाँ पे लैग करता है कि उस पॉइंट्स पे हम उसको उसके ऊपर फोकस कर पाएं व्हेन ही इज एनरोल्ड, तो हम उसके ऊपर
ऊपर काम करते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं। दिस इज दी, इसलिए हमें जो हमारा इंटरेस्ट टेस्ट है वो बहुत ज़रूरी है, हम लेते हैं हर बच्चे का। बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा फील आ रहा है सर से बात करने के बाद, जैसे तारे ज़मीन पर का जो आमिर खान का रोल है आप बहुत बखूबी रियल लाइफ, वो तो रियल लाइफ में था बट आप रियल लाइफ में बखूबी निभा रहे हैं। स्टाफ की अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को होता है कि कुछ पेरेंट्स का मानना है कि लोकल स्टाफ होगा तो लैंग्वेज, उनका एक्सेंट ठीक नहीं होगा, राइट? ये कुछ बेसिक इश्यूज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे बच्चे क्लास 1 से जैसे यहाँ से स्टार्ट है तो बच्चों का वो बेस होता है। थोड़ा सा स्टाफ के बारे में डिटेल में बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि Alpenstock has particular norms in recruiting the staff. Wonderful. तो मेरे मानने में ये नहीं है कि कोई भी अगर लोकल स्टाफ मेंबर है, वो भी ये नहीं है कि वो लोकल है तो उसको शायद से उसका लेवल वो नहीं है, बट हमारे एक सर्टेन नॉर्म्स हैं रिक्रूटमेंट के। Our staff, we don't have any local staff, first of all. Okay. And all the staff members are from South India. Wonderful. Yes, teaching members are from South India. Some teaching members are from Egypt. Some are from Morocco. Some are from Russia. Wonderful. Some are from Egypt. Right? So the thing is we have like diverse staff. We want to give every experience, you know, to a child कि उसको हर एक experience होना चाहिए. He should get that quality. अगर हम रेजिडेंशियल का मतलब है कि बच्चे की अच्छे से ग्रूमिंग हो, राइट? सबसे ज़्यादा जो बड़े एसेट्स विच आई बिलीव, देखिए मैं मैनेजमेंट हूँ, मैंने MBBS करा तो ठीक है, मैं वन मैन कैन नॉट डू एनीथिंग, एवरीथिंग, राइट? तो मैं हर एक चीज़ अगर मैं बोलूँ कि मैं क्वालिफाइड हूँ तो मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। फॉर मी व्हाट आई बिलीव इज, मेरे बिलीफ ऐसे हैं कि जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका जो बेसिकली जो थंब है, जो उसकी फाउंडेशन है, उसके एसेट्स हैं, दैट आर द स्टाफ मेंबर्स। इसलिए हम अपनी जो रिक्रूटमेंट करते हैं, वी रिक्रूट ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, वी रिक्रूट फ्रॉम इंटरनेशनल स्टाफ मेंबर्स आल्सो, लाइक वी रिक्रूट, ताकि हम एक बच्चों को जो पढ़ाने वाले हैं वो खुद से इतने हमारे फिल्टर्ड होने चाहिए, इतना फिल्टर्ड स्टाफ हमें चाहिए कि हमारे बच्चे का एक लेवल हो जी। क्योंकि आई हैव सीन, कई बार मैंने देखा है कि जब हम कभी सोसाइटी में बैठे होते हैं जी, तो कोई भी बोलता है कि लेट्स प्ले बिलियर्ड्स। मैंने किसी बच्चे को बोला चलो बिलियर्ड्स खेलते हैं। मैक्सिमम आंसर्स व्हिच आई हैव रिसीव्ड वाज दैट व्हाट इज बिलियर्ड्स, व्हाट इज बिलियर्ड्स, ही डजंट नो, राइट? पेरेंट एक अपना, जैसे मैंने बताया कि एक हार्ड अर्न मनी बच्चे के ऊपर लगा रहा है जी, वो स्कूल भेज रहे हैं। स्कूल्स आर फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। हम लोग थोड़ा सा, मैं ना कई बार देखता हूँ कि हमने क्या कर लिया है कि हम ना ज़्यादा थ्योरेटिकल हो चुके हैं जी, प्रैक्टिकल रहे ही नहीं जी। हम आजकल एक्सपोजर जो है वो बहुत कम हो गया। वैसे एक्सपोजर होगा, अच्छा जी ये ब्रांड आ गया कपड़ों का, ये शूज़ का ब्रांड आ गया, ये वो फलाना ब्रांड है, मुझे नहीं लगता रियल लाइफ है वो, दैट विल नॉट बी हेल्पफुल। अभी मैंने कपड़े डाले, कोई मेरा टैग थोड़ी देखेगा जी। What they will see is how much knowledge he holds. जी बिल्कुल, ठीक है जी। वो जो सोसाइटी में that is the accountable thing. So हमारा बेसिकली प्लान था कि हम बिल्कुल, अगर जो स्टूडेंट आ गया ना हमारे पास, उसको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। He should say in this society, let's do, I can do it, right? So उस चीज़ को करवाने के लिए, वो एक बनाने के लिए, वैसा बच्चा तैयार करने के लिए, we want the best staff members. So I can proudly say that we have the best staff members in house, on the basis of, this is not, I'm not speaking these words, but these are my parents' words जो अभी तक हमारे साथ attached हैं जी। I won't say 100%, but I would say 99.9%. Okay. Right? Our parents are satisfied with academics, sports, because the curricular and both are well balanced. Okay. And best thing is with the Alpenstock World School is this, that we have integrated sports academies. हर एक sports के लिए हमारे पास integrated academies हैं, and all the things are like professionally made, coaches international levels के हैं, coaches are all NSS qualified, ठीक है जी। मतलब national sports academies के जो qualified coaches हैं, those coaches we have in our house. So basically we wanted कि हमारा जो बच्चा है ना जी, वो जब कहीं सोसाइटी में represent करे ना, तो his parents should feel proud, wonderful, that our kid knows everything. They should not have that hesitation कि कहीं सोसाइटी में इसको ये चीज़ पूछ ली और नहीं, यहाँ पे लैक करेगा जी। और स्कूल का मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारी चीज़ों में। ओवरऑल डेवलपमेंट में जो रोल प्ले करता है वो करते स्कूल का, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जिनके ऊपर हमने कल को रिलाई करना है। आज हमारे ऊपर आज की सोसाइटी रिलाई कर रही है जी।
कल को जब हमने एक ओल्ड एज में जाना है तो हमने इनके ऊपर रिलाई करना है। That's true. और जैसा हम सोसाइटी को देंगे वैसा हमें फीडबैक वापस मिलेगा। राइट। एक सवाल जानना चाहती थी, मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स के मन में भी होगा कि हर बच्चे का IQ लेवल बराबर नहीं होता। यू मस्ट बी एग्री, राइट? सो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्लो लर्नर हैं, और मैंने देखा कि यहाँ पर स्लो लर्नर्स के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, तो वो स्पेशल चीज़ें क्या हैं, आप पेरेंट्स को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, वी हैव मॉन्टेसरी टीचिंग मेथडोलॉजीज। बहुत स्कूल्स हैं, मैंने काफ़ी विजिट किया, एक डेलीगेशन था, हम कनाडा में गए थे। सो दिस कॉन्सेप्ट केम आउट फ्रॉम कनाडा। ओके। एंड मेरे को ये था कि आई हैव दिस, बिकॉज अल्पेनस्टॉक वर्ल्ड स्कूल इज़ माई ड्रीम प्रोजेक्ट, एंड आई ऑलवेज वांटेड कि इस चीज़ के ऊपर फोकस, बिकॉज माई सेल्फ आई वाज अ स्लो लर्नर, और मुझे पता है मैं इस पेन से गुजरा हुआ हूँ जी। ठीक है जी, मुझे पता है मेरे से ज़्यादा कोई और नहीं जान सकता है। तो मेरे मम्मा ने ना एक मेरे को तब एक मेथड बताया था। ही सेड दैट आप ना हर चीज़ की एक मूवी बनाया करो, वॉट एवर यूर रीडिंग, क्लोज योर आइज, उसको इमेजिन करो कि दिस इज हाउ इट। एंड व्हेन आई वेंट इनटू माय MBBS, like there was a subject called anatomy, which like when I opened the book and I was totally afraid of that, I can't do it. Okay. And then I remembered those words of my mother, that आप ना इसको एक मूवी की तरह सोचो। तो उसमें वो नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, सारा कुछ था जो, और बोन्स वगैरह, तो मैंने ऐसे एक मूवी बनानी शुरू कर दी। एंड आई स्टार्टेड, यू नो, वो एक आपने जब आपकी एक मेमोरी बन गई ना, विजुअल मेमोरी, तो आपको याद आता है। सो इसी एक टेक्निक के ऊपर हमने यहाँ पे वर्कआउट करना शुरू करा। हमारे लिए कोई भी स्लो लर्नर नहीं है यहाँ पे। मैं बिलीव करता हूँ कि बच्चे की, जैसे मैंने बोला कि गाइडेंस है बस बच्चे को। स्कूल्स आर बेसिकली मेंट कि बच्चे को क्रैम नहीं करवाना है। जी बिल्कुल, ठीक है जी। बच्चे को उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। क्योंकि देखो, मैं आज क्रैम करवा लूंगा, उसको 5 दिन याद रहेगा, 6वें दिन क्या भूल जाएगा। ठीक है जी। और एक क्लासेस, हमारे पास कुछ क्लासेस हैं जिनके सिलेबस के ऊपर ही हमारी हायर क्लासेस डिपेंड करती हैं। तो अगर हम वो क्रैमिंग वाला करेंगे तो वो तो मतलब बच्चा तो हम तो धोखा कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल। सो वी हैव पर्टिकुलर लैब, हमारे पास एक पर्टिकुलर लैब है उस चीज़ के लिए, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी स्किल लैब। ओके, ठीक है जी। वहाँ पे हम बच्चे की मेमोरी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है जी। उसको बताया जाता है कि हमारी विजुअल मेमोरी जो है वो हमारी रीडिंग मेमोरी से कितनी ज़्यादा पावरफुल है। बिकॉज अगर मैं टाइटैनिक की बुक पढ़ूंगा तो मुझे कुछ सीन्स हैं जो मैं माइंड से स्किप कर दूंगा। बिल्कुल। अगर मैं वो मूवी देख लूंगा ना, आपने भी देखी होगी, मैं आज आपको पूछ लूंगा कि मैम वो जब शिप डूबने वाली थी तो क्या हुआ। जी। एवरीबडी रिमेंबर्स दैट आइकॉनिक पोज, राइट? बट इफ विल रीड अबाउट दैट आइकॉनिक पोज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता नहीं चलेगा। दैट्स ठीक है। हम स्किप कर देते हैं, जो हम पढ़ते हैं ना, हम कभी कभार स्किप कर देते हैं। ये ह्यूमन माइंड है, ये हमने MBBS में भी पढ़ा है कि ये ह्यूमन माइंड है, राइट? हम स्किप कर देंगे। हमारी विजुअल मेमोरी हमारी रीडिंग मेमोरी से ज़्यादा है कई बार। हम बच्चे को ट्रेन करते हैं कि जो तू पढ़ता है ना, उसको तूने विजुअल मेमोरी में कैसे लेके जाना है, कन्वर्ट करना है। इवन डोंट डिपेंड ऑन द स्मार्ट क्लासेस। हमारे पास स्मार्ट क्लासेस हैं, दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट डोंट डिपेंड ऑन देम। क्रिएट योर ओन एनिमेशन। एक्सीलेंट, राइट? उसको अपने दिमाग को दौड़ाओ, ताकि आपको कल को कॉलेजेस में प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे आपको स्मार्ट क्लासेस नहीं मिलेंगी। जी बिल्कुल। कुछ आपको MBBS की स्मार्ट क्लासेस नहीं मिलेंगी, राइट? अपना एक क्रिएट करना शुरू करो। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल स्मार्ट क्लास का भी बहुत कॉन्सेप्ट है, और लोग पेरेंट्स को स्पेशली लगता है कि नहीं जी, स्मार्ट क्लास ही इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, उन्हें आप कोई मैसेज दें, दैट एनीथिंग दैट यू वांट टू से। सबसे पहले नमस्कार सबको। व्हाट आई वांट टू से कि दैट आप अपने बच्चे की जो कोर स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए, एंड find out a best institute for yourself. I could say that Alpenstock World School is the best for you all. It is. And please do visit us and know our teaching methodologies. We even have special workshops for parents. And मैं चाहता हूँ कि आप एक बार हमें visit कीजिए, हमारी workshops attend कीजिए, so that you get to know that how we are different than other schools. And please focus on your काम होते रहते हैं, हम सारी ज़िंदगी काम करेंगे, बट हमारे जो बच्चे का फ्यूचर है वो एक बार अगर वो टाइम हाथ से निकल गया वो दोबारा आने वाला नहीं है। सो प्लीज़ चूज़ वेरी वाइजली वॉट एवर स्कूल यू आर चूजिंग, प्लीज़ चूज़ इट वेरी वाइजली। दैट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू, एंड प्लीज़ डू स्पेयर सम टाइम फॉर योर किड्स। वंडरफुल, थैंक यू। सो यहाँ पर एक और चीज़ मैं जाने से पहले कहना चाहूँगी कि अक्सर हमने देखा है कि जब
बच्चे की पहचान उसके माँ बाप को, मतलब होता है ना कि जैसे ये उसके पापा हैं, ये उसकी मदर है, वो तो जो एक प्राउड मोमेंट होता है वो सबसे बेस्ट होता है। उस प्राउड मोमेंट को क्रिएट करने के लिए आपके बच्चे को सही जगह भेजना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे लगता है आपकी जितनी क्वेरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, वीडियो भी आप देख चुके हैं और सारी की सारी डिटेल्स हमने कैप्शन में भी दी हुई है। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।